Teaching Strategies for Children with MDVI, an Ask Perkins India webinar series, Part 3. Good evening, everyone, and namaste. I welcome you all to our third webinar on teaching strategies for children with MDVI, Part 3. I am Anuradha Mungi, and I am going to conduct this webinar today. आज का हमारा पहला belief जो है, all children with MDVI can learn irrespective of their abilities and needs. आज का जो हमारा पहला बिलीफ है वो ये है कि हर MDVI बच्चा सीख सकता है. What do we want for our children with MDVI? As Dr. Barbara McClatchy, a renowned expert in the field of MDVI, says that we want our children to get opportunities to live, to love, to play, and to work. डॉक्टर बारबरा मकलाची कहती हैं कि हम हमारे MDVI बच्चों को जीना, प्यार करना, खेलना और काम का अवसर देना चाहते हैं. To live, if you see the photograph on the top left, a young boy with MDVI is sitting on the floor and he is eating his food independently. Eating independently is such an important skill of our life. Previously, his mother used to feed him, but gradually, with the support of his mother, he started eating on his own and now he eats independently. To live, अगर आप लेफ्ट साइड में फोटो देखेंगे तो एक MDVI से ग्रस्त बच्चा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अपना माइक्रोफोन म्यूट पे रखिएगा. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो एक MDVI से ग्रस्त बच्चा जो जमीन पे बैठ के खुद के हाथों से खाना खा रहा है. खुद के हाथों से खाना खाना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा कौशल है. शुरू में उसकी माँ उसे खाना खिलाया करती थी, पर धीरे धीरे माँ की सहायता से बच्चे ने खुद से खाना सीखा और अब वो खुद से खाता है. And to love, love is all about healthy relationship in our life, which gives us happiness, pleasure. If you see in the photograph, a young girl with MDVI is lying in teacher's lap and she is looking so happy, cheerful, and she is trying to listen to what teacher is communicating to her. जितने ज़्यादा हमारे रिश्ते होते हैं उतने ज़्यादा हमारे संबंध बेहतर होते जाते हैं. अगर आप फोटो में देखेंगे तो एक MDVI से ग्रस्त बच्ची टीचर की गोद में लेटी हुई है और वो बहुत खुश नज़र आ रही है और वो जानने की कोशिश कर रही है कि टीचर उससे क्या बात कर रही है. टू प्ले, I'm sure we all love to play, and hence we should encourage our children with MDVI to learn to play, as most of the time we forget that our children can play and they can learn to play. मुझे आशा है आप सभी को खेलना बहुत पसंद होगा. हमारे MDVI से ग्रस्त बच्चों को भी खेलना पसंद होता है और हमने जितना हो सकता है हमारे MDVI से ग्रस्त बच्चों को खेलने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि वह भी खेल सकते हैं और खेलना चाहते हैं. Then to work. When we work with children with MDVI, our first aim is to make them independent. Hence, our focus is on encouraging them to learn functional skills. If you see in the photograph,
A young boy with MDVI is fetching water from hand pump, which he does it every day. He takes 2 bucket water for his family, which his family members use it every day. And this is the way he contributes and support his family. जब भी हम MDVI बच्चों के साथ काम की शुरुआत करते हैं, हमारा ये लक्ष्य और ध्येय होता है कि हम उन्हें इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं। और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम शुरुआत करते हैं कि उन्हें फंक्शनल स्किल्स, कार्यात्मक कौशल सिखाते हैं। अगर आप फोटो में देखते हैं तो एक MDVI से ग्रस्त बच्चा जो हैंडपंप से पानी भर रहा है, वो हर दिन वो 2 बाल्टी पानी भर के घर पे लेके जाता है, जो उसके परिवार के सदस्य उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से वो घर के कामों में मदद करता है। Our first teaching strategy for today is have activities that are age appropriate and motivating to children with MDVI. आज की हमारी पहली स्ट्रैटेजी है कि जब भी हम कोई एक्टिविटी बच्चों के लिए प्लान करते हैं, वो बच्चों के एज के अनुसार, मतलब उनकी आयु के अनुसार और उनके लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए। If you see in this photograph, the girl is sitting very comfortably on the chair. The materials kept in front of her are at her level, and there is beautiful communication going on between the teacher and the child. जब भी हम एक्टिविटी प्लान करते हैं तो वो बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर आप फोटो में देखते हैं तो MDVI से जो ग्रस्त बच्ची है वो बहुत ही कंफर्टेबली चेयर पे बैठी है। वो उसका सिटिंग पोजीशन बहुत कंफर्टेबल है। जो भी मटेरियल्स उसके सामने रखे गए हैं वो बहुत उसके लेवल के अनुसार है, और बच्ची और टीचर दोनों के बीच में बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन हो रहा है, और बच्ची ध्यान दे के ये सुनने की कोशिश कर रही है कि टीचर उससे क्या बातचीत कर रहे हैं। तो this is an activity of sorting vegetables. Like before this activity, teacher gave her a choice, like which are the vegetables she wanted to do sorting with, and she preferred to choose potatoes, tomatoes, and onions. Potatoes and tomatoes are her one of the favorite vegetables which she really loves to eat it. जब ये एक्टिविटी है सॉर्टिंग की एक्टिविटी शुरू करने के पहले बच्ची को टीचर ने चॉइस दिया था कि उसे कौन सी सब्जियों के साथ सॉर्टिंग करनी है। उसने कहा कि उसे आलू के साथ, टमाटर के साथ और प्याज के साथ सॉर्टिंग करना है। टमाटर और आलू उसकी एक पसंदीदा सब्जियों में से है। जब हम बात करते हैं चॉइस मेकिंग की, when we talk about choice making, it is very, very important that we should encourage and allow our children to do choice making, as it helps in better communication and developing confidence in our children with MDVI. जब हम चॉइस मेकिंग की बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें अपने MDVI से ग्रस्त बच्चों को चॉइस करने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि उससे उनका कम्युनिकेशन बेहतर होता है और उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। After doing the choice, after sorting, the girl with the help of, if you see in the second photograph, the girl, she has done the sorting activity. She has separated onions, tomatoes, and potatoes separately. After this sorting activity, with the help of her teacher, she cuts the vegetable, which she gave it to her mother,
and mother prepared this vegetable and which the girl ate it happily. ये सॉर्टिंग एक्टिविटी की गई, जैसे आप सेकेंड फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि बच्ची ने सब प्याज अलग किया, आलू अलग किया और टमाटर अलग किए। बाद में उसने टीचर की सहायता से वो सब्जियां काटी और उसने अपनी माँ को वो सब्जियां दी, जो माँ ने वो सब्जियां बनाई और बाद में बच्ची ने खुशी से खाई। If you remember in our first webinar, Sampada spoke about clear beginning, middle, and end. Even in this activity, if you see, there was clear beginning, middle, and end. Like in the beginning, the girl was given the choice which vegetable she wants to do sorting with. She did the sorting activity, and after the sorting activity, she cuts the vegetables with the help of a teacher, and after that, mother prepared the vegetable and she had it. अगर आपको याद होगा, पहले वेबिनार में संपदा ने बात की थी क्लियर बिगनिंग, मिडल और एंड की। तो इस एक्टिविटी में भी अगर आप देखते हैं तो क्लियर बिगनिंग, मिडल और एंड हुआ कि बच्ची ने पहले चॉइस किया, उसने सॉर्टिंग एक्टिविटी की। सॉर्टिंग एक्टिविटी के बाद उसने टीचर की सहायता से वो सब्जियां काटी और सब्जी काटने के बाद उसकी माँ ने बनाई और वो सब्जी उसने अच्छे से खाई। It is very, very important that we should include all our children with MDVI in whole process and whole activity. As most of the time, our children, they eat food, they eat vegetables, but they really don't understand from where the vegetable has come from. बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को एक्टिविटी में पूरी तरह से इन्वॉल्व करें, क्योंकि बच्चे खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, पर कई बार उन्हें पता नहीं होता कि वो सब्जियां कहाँ से आ रही है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चों को पूरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए। Our second strategy for today is using multisensory approach. When a major sense, that is vision, is impaired in children with MDVI, they use their different senses to identify objects. Using different senses helps them to understand and identify objects and people better. दूसरी हमारी स्ट्रैटेजी है मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज़ करना। जब MDVI से ग्रस्त बच्चों में देखने की क्षमता कम होती है या वे नहीं देख पाते हैं, वे अपनी विभिन्न इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। जब वे विभिन्न इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें चीज़ें और लोगों की जानकारी ज़्यादा अच्छे से पता चलती है। आप और हम भी बहुत बार हमारे जीवन में अलग अलग इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। We also use our different senses in our day-to-day activities. If I'll just take a small example of a mango, like we use different senses to know whether the mango is ripe or it is raw. Sometimes we see the color of the mango. Sometimes we smell the mango. Sometimes we touch and feel whether it is hard or it is soft. Sometimes even we tell the fruit seller to give it a slice to taste whether it is sweet or sour. बहुत बार हम भी अपने जीवन में विभिन्न इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण अगर लिया जाए आम का, आम पका है कि नहीं वो पहचान करने के लिए हम अपनी विभिन्न इंद्रियों का इस्तेमाल करके देखते हैं। कई बार हम रंग से पहचानने की कोशिश करते हैं कि आम पका है या कच्चा है। कई बार हम सूंघ के पहचानते हैं
कई बार हम छू कर पहचानने की कोशिश करते हैं कि आम कड़क है या नरम हुआ है। कई बार हम खा के देखते हैं कि आम मीठा है या खट्टा है। इस तरह से दैनंदिनी जीवन में भी हम हमारी विभिन्न इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। But I am sure most of us missed eating mango this year due to COVID-19. There are some simple activities given here. They are very simple, but you can take these activities at home with children with MDVI. यहाँ पे कुछ activities दी गई हैं जो आप बच्चों के साथ घर पे ले सकते हैं। बहुत simple activities हैं। एक पहला है it's of water play. In water play, you can make your own colors. You can make colors from spinach leaves, coriander leaves, mint leaves. You can add turmeric to water. You can add some food color to water to play. And then, like for smell, you can put some essence. You can add rose water. You can add lime water. This way you can add smell to water. And then for texture and sound, you can put the toys or objects which child loves to play. ये ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे एक वाटर प्ले की एक्टिविटी दी गई हुई है जिसमें आप अपने कलर खुद बना के डाल सकते हैं, जैसे पालक की पत्तियों का कलर, धनिया की पत्तियों का कलर या पुदीने की पत्तियों का कलर, या जो फूड कलर हमारे होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या हल्दी पानी में डाल सकते हैं। स्मेल के लिए आप एसेंस डाल सकते हैं या गुलाब जल डाल सकते हैं या नींबू का पानी आप उसमें डाल सकते हैं, जिससे बच्चे को खुशबू भी लेने का अवसर मिले। और कुछ टॉयज या कुछ ऑब्जेक्ट्स उसमें डाल सकते हैं जिससे बच्चा खेलना पसंद करता है। तो इस तरह से एक घर पे आप वाटर प्ले की एक्टिविटी ले सकते हैं। The second photograph is of lentils. Like we have very colorful lentils which could be used, like for aroma you can add cardamom or cinnamon powder to it. Like you can put different textured objects which child can play with. दूसरा हमारा जो फोटो है वो है दाल के साथ में। हमारे यहाँ पे बहुत कलरफुल दालें मिलती हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती है। उसमें खुशबू के लिए आप या तो इलायची का पाउडर या दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं। उसमें कई अलग अलग टेक्सचर के ऑब्जेक्ट्स आप उसमें डाल सकते हैं या खिलौने डाल सकते हैं जिससे बच्चा खेल सके। थर्ड फोटो है कलरिंग का, जिसमें वापस आप पालक के पत्तों का रंग या धनिया के पत्तों का रंग या पुदीने के पत्तों का रंग या हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेक्सचर्स के लिए आप अलग अलग सब्जियां या पत्तियों का या फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। Like third photograph is of coloring activity. For again, as I said and mentioned, that we can make our own colors at home with spinach leaves, mint leaves, or coriander leaves, and turmeric. And like for designs, we can use different vegetables, different leaves, and different flowers. Then fourth photograph, like we can use like our wheat flour, then our refined flour and our gram flour. And again, the colors could be added. And for smell, we can add rose water or the paste of mint leaves could be added where the child can play with that dough. फोर्थ जो है उसमें आप आटा इस्तेमाल कर सकते हैं या बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं या मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप ये सारे कलर्स डाल सकते हैं या हल्दी डाल सकते हैं जिससे आटा गूंद के बच्चा उसके अलग अलग शेप्स के साथ खेल सकता है। These are, I know, very simple and basic activities. There are many activities,
but these activities are important, and like the materials you can easily get at home. ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, एक्टिविटीज़ बहुत सिंपल हैं, ये सारे मटेरियल्स आपको घर पे आसानी से मिल सकते हैं. Most of our kids, they have the habit of putting their fingers in mouth. And if we make these materials at home, it will be non-toxic for them. बहुत सारे हमारे MDVI से ग्रस्त बच्चों की आदत होती है कि वे अपने हाथ और उंगलियां मुंह में लगातार डालते रहते हैं. अगर ये सारे हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं तो वो उनके लिए हानिकारक नहीं होंगे. इस सारी एक्टिविटीज़ में आप उनके भाई बहनों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. इन ऑल दीज एक्टिविटीज़ you can even involve their siblings. I'm going to show you a short video of a girl. She is an MDVI child. She has low vision and mobility issues and she cannot speak. अभी एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाने जा रही हूँ जो एक MDVI से ग्रस्त बच्ची का है, जिसे लाइट परसेप्शन है, मोबिलिटी इश्यूज है और वो बोल नहीं पाती है. इस बच्ची ने पहली बार रिस्ट वॉच, मतलब शी सॉ द रिस्ट वॉच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. मतलब उसने अपनी जो हम घड़ी पहनते हैं वो पहली बार देखी. And you can see how she is using her different senses to identify the wristwatch. इसमें आप देख सकते हैं कि बच्ची किस तरह से अपना सेंसेस यूज करके घड़ी की पहचान कर रही है. बच्ची ने पहले हिला के देखा कि उसमें से कुछ आवाज आ रही है क्या. बाद में उसने मुंह में डाला. बाद में थोड़ा सा वो सूरज की किरणों की तरफ मुड़ी. She made a beautiful adaptation on her own, that she turned herself towards the sunlight and now she is observing the wristwatch. She is touching it and she is bringing it close to her eyes. आपने देखा कि बच्ची ने she moved it to see whether there was some sound coming. She puts the wristwatch in her mouth. Then she turned herself towards the sunlight to see the wristwatch. This way she was using her different senses beautifully. इस तरह से बच्ची ने अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके घड़ी की पहचान करने की कोशिश की. Third strategy is use real objects and involving children in meaningful conversation. तीसरा जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो है कि जितना हो सके हमने रियल ऑब्जेक्ट्स ही इस्तेमाल करना है. If you see, like most of the time we buy plastic fruits and vegetables. If you see in the photograph, they are very attractive in color. But when we say using different senses, use of different senses, the children will not be able to use them. They will not be able to see through touch. They will not be able to smell them. They will not be able to eat it. So it's very important that we should use real object. जहाँ हम रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हमने रियल ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आप फोटो में देखते हैं तो फल और सब्जियां हैं जो कि बहुत कलरफुल हैं. वो दिखने में तो बहुत सुंदर हैं, पर जहाँ हमारी इंद्रियां जो इस्तेमाल करने की बात आती है, बच्चे वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. ना कि वो खुशबू लेके समझ पाएंगे कि वो क्या चीज़ है, वो छू के पहचान नहीं पाएंगे कि वो क्या चीज़ है, वो खा के समझ नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ है. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमने रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना चाहिए. आपको वापस एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगी जो कि एक MDVI से ग्रस्त बच्ची का है और उसे लो विजन है और सेरेब्रल पॉल्सी है.
I'm going to show you a short video of a girl with MDVI. She has low vision and cerebral palsy. For the very first time, she is exposed to orange. पहली बार उस बच्ची को संतरा क्या होता है वो सिखाया जा रहा है. If you remember in our second webinar, Supriya spoke about hand over hand assistance and hand under hand assistance. In this video, you can see how she was taught to use hand over hand assistance and hand under hand assistance. आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने जा रही हूँ जो MDVI से ग्रस्त बच्ची का है, जिसे लो विजन है और सेरिब्रल पॉल्सी है. पहली बार उस बच्ची को संतरा क्या होता है वो सिखाया जा रहा है. वो उसे हैंड ओवर हैंड असिस्टेंस के साथ और हैंड अंडर हैंड असिस्टेंस के साथ सिखाया जा रहा है. अगर आपको याद होगा तो हमारे सेकेंड वेबिनार में सुप्रिया ने बात की थी हैंड अंडर हैंड असिस्टेंस और हैंड ओवर हैंड असिस्टेंस की. इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि किस तरह से बच्ची को संतरा क्या होता है वो सिखाया जा रहा है. Teacher is asking her, is she smelling anything? If you see, the girl has kept her hand on the teacher's hand and she is very comfortable and she is observing what teacher is doing. She's been asked what is it, whether she wants to peel an orange. Not rejecting it, right? If you see, she was continuously moving, but when she is involved in the activity, she has stopped rotating herself and she is sitting quietly. आप अगर देख रहे हैं, बच्ची ने टीचर का हाथ के ऊपर हाथ रखा है और वो सीखने की कोशिश कर रही है कि टीचर क्या कर रही है. पहले बच्ची अपने आप घूम रही थी, थोड़ा हिल रही थी, पर जैसे ही टीचर ने एक्टिविटी शुरू की, उसने हिलना बंद किया और टीचर की तरफ ध्यान देना शुरू किया. आप ये वीडियो में ये भी देखिए कि टीचर उससे लगातार बात कर रही है. टीचर इज कंटिन्यूअसली टॉकिंग टू हर. टीचर इज आस्किंग हर what we are doing. Is she getting a smell? Whether she wants to participate in this activity. So the continuously communication is going on between the teacher and the child. Even she was asked if she wants to touch the peel. The teacher is taking the lead role in peeling the orange. The pacing, if you see, is very beautifully done. Like, it's not that they are doing it very fast. If you see, now with hand over hand assistance by the teacher, the girl is removing the peel of the orange. आप देखेंगे तो ये बच्ची अभी खुद एक्टिविटी कर रही है हैंड ओवर हैंड की सहायता से. वापस there is communication between the child and the teacher is going on. Teacher again is asking her that we are peeling the orange. Wow. After the peeling activity,
The girl made the slices which she shared with her brother and mother. बाद में बच्ची ने जो संतरे के छिलके निकालने के बाद उसके पीसेस किए जो कि उसने अपनी माँ और भाई के साथ शेयर किए. It is very important that we should involve siblings and parents in activities. Before we wind up, there are few things which we need to remember. Use multisensory approach. As most of our children, they have a unique learning style. They want to use their different senses while learning. I think we should respect their learning needs and style and encourage them to learn the way they want to learn. खत्म करने के पहले कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है. पहला है मल्टी सेंसरी अप्रोच. जितना हो सके बच्चों को अपने विभिन्न इंद्रियों का इस्तेमाल करने का अवसर दीजिए, क्योंकि हर बच्चा एक अलग है, उसका अलग सीखने का तरीका है. तो जितना हो सके हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि जितना वो अपने दूसरी इंद्रियों का इस्तेमाल करके सीखना चाहते हैं, उन्हें सीखने का हमें अवसर देना चाहिए. Real objects, हमेशा we need to remember I'm sorry, that we need to use real objects. Then conversation during activities. It is very important whenever we do any activities with children with MDVI, we need to do conversation with them. जब भी हम कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करते हैं, हमने हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें उनके साथ लगातार कम्युनिकेशन करना है. I remember when we were at Helen Keller Institute. Beros madam used to tell us that we have to do conversation with students while doing activities. She also used to tell us, even if you are signing, you have to speak. तो बेरोज मैम हमेशा कहती थी कि जब भी हम बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी लेते हैं, हमें उनके साथ लगातार बातचीत करनी है. तो जब भी हम कुछ भी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करते हैं, हमने इंश्योर करना है कि हमें उनसे बातचीत करते रहना है. और लास्ट में involving siblings and family members. Whenever we do activities with children with MDVI, we should include siblings and family members. जब भी हम कोई एक्टिविटी बच्चों के साथ लेते हैं, हमने ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जितना हो सके उनके भाई बहन या उनके फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करना है. अगर आप फोटो में देखेंगे, if you see in the photograph, the two girls with MDVI, they are playing and they are joining rings with their non-disabled siblings, which all are happily doing it. And if you see behind, the mother is standing and she is feeling so happy to see them playing all together. अगर आप फोटो देखते हैं तो उसमें दो जो MDVI से ग्रस्त बच्चियां हैं, वो अपने नॉन डिसेबल्ड भाई बहन हैं, उनके साथ खेल रही हैं. वो रिंग्स जोड़ने का काम कर रहे हैं. वो सभी बहुत खुश हैं आपस में एक साथ खेलते हुए. पीछे उनकी माँ खड़ी हैं जो देख के ये खुश हो रही हैं कि ये सारे बच्चे इतने अच्छे से एक साथ खेल रहे हैं. It is very, very important that we need to include siblings and family members whenever we plan activities for children with MDVI. I think it's time for questions. Thank you so much, Anuradha, for the wonderful presentation. अगर आप लोगों के कुछ सवाल है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करिएगा. तब तक एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ अनुराधा से. जब तक आप लोग चैट बॉक्स में अपने अपने सवाल पूछो. अनुराधा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने मल्टी सेंसरी अप्रोच को बहुत बढ़िया तरीके से बताया,
पर कई बार ऐसा होता है कि ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए बच्चे एक जगह पे कई सारे बच्चे नहीं बैठना चाहते, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? Like in such case, we can tell children to have the movement activities if they are not ready to sit at one place. Like we can make, like for an example, we take an activity of lemon juice. लेमन जूस बनाने के लिए हो सकता है अगर आप क्लासरूम सेटअप में हैं तो यू कैन गो टू किचन, यू कैन टेल द चाइल्ड टू ब्रिंग द मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड. After the activity, you can tell the child again go to kitchen and keep the things from where he has got. This way we can have the movement based activities for the children. Like even we can have the activities like going to garden and water the plant. There again, there will be multisensory, like they can use different senses, like they can smell flowers, they can touch different leaves, they can even water the plants. This way, they can use their different senses even in the movement-based activities. Thank you so much. There is a question from Radha Mani, and Radha Mani wants to know कि अगर बच्चे ऑब्जेक्ट लेवल पे फिलहाल सीख रहे हैं and we want to take them to the picture level, so how can we do that? Hi Radhamani, like again you see the cognition of the child. If he is cognitively bright enough to understand the pictures, like you can start with from, like you can introduce the pictures from family members, like you can have some symbols, like if, so for example, if we are taking a symbol of mother as an identification, like a bangle, so like for shifting him from an object to a picture, you can put a mother's photograph along with that bangle. So there will be an identification. Yes, this is the mother, like this is the bangle which he used to identify earlier. Now he can associate with the photograph that this is my mother's photograph. And whenever you take any activities, like if you take the child to a garden, like you can have some objects from the garden and again you can draw a picture of everything, like what the child did in garden. This way, like with objects along with some pictures and some written materials, you can give the introduction to the child from object to picture level. अगला क्वेश्चन नाम नहीं दिख रहा है, बस एक नंबर दिख रहा है. They want to know कि टीचिंग स्ट्रेटजी में in a classroom or a classroom setup, if we want children to be more reactive, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? More participating in nature. अगर हम जब एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं तो हमने ये देखना चाहिए कि वो एक्टिविटी बच्चे के एज के अनुसार होना चाहिए, प्लस एक्टिविटीज़ बच्चे के इंटरेस्ट की भी होनी चाहिए. अगर बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं दे विल बी मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी. अगर हम अपने हिसाब से एक्टिविटी प्लान करेंगे, if the child is not interested in doing the activity, then it will not be very helpful. So I think we need to plan the activities according to the age of the child and the interest of the child. The next question is from Pooja. तो पूजा पूछ रही है कि मैम अगर बच्चा हाइपर एक्टिव हो और उसी के साथ वो किसी भी चीज को छूने से डरता हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उससे काम करवाते भी है तो वो अपने आप को मारने में लग जाता है. तो ये उनका सवाल है कि इस बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं. हाय पूजा, पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि बच्चा कौन सी चीज़ नहीं पसंद करता है, उसे कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है. कई बार
अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे छूना पसंद नहीं करते, दे डोंट वांट टू टच इट। तो आपने ये सब देखने की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं सपोज एक एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर आपको मैं ब्लाइंड फोल्ड करूँ और आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें छुआऊँ, जैसे हो सकता है पाइनएप्पल छूने बोलूँ, या कुछ ऐसी चीज़ या स्टिकी चीज़ जैसे फेविकोल या कुछ गम, इस तरह की चीज़ें अगर ब्लाइंड फोल्ड करके चूज़ करने को बोलूँ तो शायद आप भी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन से टेक्सचर्स हैं या कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो बच्चा पसंद नहीं करता है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो इंटरेस्ट लेके करता है और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें वो करना पसंद नहीं करता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर और डिटेल्स आपको चाहिए तो आपको मैं ज़रूर मेल करके बता सकती हूँ कि किस तरह की एक्टिविटीज़ आप उसके साथ क्लासरूम में ले सकते हैं। अगला सवाल है, नाम नहीं दिखाई दे रहा है, बस कंप्यूटर का नाम एसर दिख रहा है। वो जानना चाहते हैं कि जब एक टीचर एक एमडीवीआई से ग्रस्त बच्चे को सिखाती है तो टीचर ने कहाँ खड़े होना चाहिए या कहाँ पे होना चाहिए? वेयर शुड शी प्लेस हरसेल्फ? अगर वापस यहाँ पे एज की बात करते हैं, अगर बच्चा छोटा है, अराउंड 5-6 साल तक का बच्चा है, तो हम उसे अपनी गोद में लेके भी बिठा सकते हैं। बाद पे चाहिए तो हम उसको उसके सामने या जब उसको सपोर्ट लगता है तो पीछे खड़े होके उसको हैंड ओवर हैंड या सपोर्ट, जिस तरह का सपोर्ट चाहिए, पीछे खड़े होके भी उसे सपोर्ट दे सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। ये अश्विनी कुमार का प्रश्न है। वो कह रहे हैं कि एक 12 साल का बच्चा है हु हैज वाटर फोबिया एंड लो विजन, तो उसको हम ब्रशिंग एक्टिविटी कैसे सिखा सकते हैं? क्योंकि जैसे ही वो पानी को छूता है तो वो चिल्लाने लगता है। तो हाउ कैन वी टीच हिम ब्रशिंग एक्टिविटी? Because as soon as he comes in contact with water, he starts shouting, and he's scared of water, 12 years of age and low vision. Okay, I just want to ask like whether he does not like cold water or he likes the warm water. अश्विनी कुमार जी, यस मैम, कोल्ड वाटर। हाँ, आप उससे थोड़ा सा कोशिश करके देखिए कि अगर वो थोड़ा सा कुनकुना पानी अगर आप इस्तेमाल करके देखते हैं, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी उसे छूना पसंद नहीं होता है, तो हो सकता है आप कोशिश करके देखिए कि वो गर्म पानी या थोड़ा हल्का गर्म पानी, बहुत गर्म भी नहीं, हल्का गर्म पानी अगर आप उसके साथ दे के शुरू कीजिए, देखिए कैसा वो रिस्पॉन्स करता है। अगर नहीं तो प्लीज़ फिर से हमसे पूछिए कि क्या उसने रिस्पॉन्ड किया है कि नहीं। thank you Anuradha for all the answers, and thank you all the participants for the lovely questions. Over to you again, Anuradha. अगर आप हमारे एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमें ईमेल में लिख सकते हैं, और हमारी नीचे यहाँ पे हेल्पलाइन भी दी हुई है, आप इस पे भी फ़ोन करके हमें पूछ सकते हैं। There are few announcements, like if you have attended all the 3 webinars, अगर आपने तीनों webinars attend किए हैं तो आप अपना नाम ईमेल में भेज सकते हैं, and we'll be sending you shortly a survey form. आपसे रिक्वेस्ट है कि वो सर्वे फॉर्म भेज दीजिएगा भर के। उसमें भी आपने अगर तीनों, इफ़ यू हैव अटेंडेड ऑल द 3 webinars, you can fill it in the survey form as well. And we'll be coming with our next webinar soon. We'll get back to you. We'll send you an email कि हम कौन से टॉपिक पे और कब नेक्स्ट वेबिनार लेने वाले हैं, तो आप वो
मेल्स के थ्रू या हमारे फेसबुक के थ्रू आपको पता चल जाएगा। Lastly, thank you all very much for attending our webinars. Thanks a lot, and thank you Sampada for moderating this session. Thank you so much.